ایک طرف چنگیز خان، جس کے نام سے شہر کانپتے تھے، جس کی یلغار نے سلطنتوں کو مٹی میں ملا دیا تھا، جس کے گھوڑوں کی ٹاپیں ایشیا کی سرزمین پر قیامت لکھ رہی تھیں، اور دوسری جانب سلطان جلال الدین خوارزم شاہ، ایک شکستہ خوردہ سلطنت کا وارث، مگر شکستہ حوصلوں کا نہیں، جس کے پاس نہ وسیع لشکر تھا نہ مستحکم سلطنت، مگر اس کے سینے میں وہ آگ تھی جو بجھنے سے انکار کر چکی تھی۔ چنگیز خان فتوحات کا عادی تھا، مگر جلال الدین مزاحمت کا عنوان بننے جا رہا تھا۔ ایک کے سامنے دنیا جھکتی تھی، دوسرا دنیا کے سامنے جھکنے کو تیار نہ تھا۔ یہ داستان اسی لمحے سے شروع ہوتی ہے جب تاریخ نے فیصلہ کیا کہ اب طاقت اور استقلال آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پروان کی مٹی گواہ بنے گی کہ فولاد ہمیشہ تعداد سے نہیں، ارادے سے مضبوط ہوتا ہے۔ جب میدان جنگ میں سورج کی پہلی کرن خون آلود زمین پر پڑتی ہے تو صرف تلواریں نہیں ٹکراتی، عقل اور مکر بھی آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ تاتاری جنگ آزما، جن کی رگوں میں فریب بھی تلوار کی طرح دوڑتا تھا، اس رات ایک ایسی چال چل گئے جس نے دور سے دیکھنے والے ہر آنکھ کو دھوکہ دے دیا۔ دن بھر کی لڑائی میں جو تاتاری مارے گئے تھے، ان کی جگہ لکڑیوں اور کپڑوں کے بے جان پتلے تیار کیے گئے۔ انہیں گھوڑوں پر سوار کیا گیا اور اندھیری رات کے پردے میں اصل لشکر سے کچھ فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ صبح کی دھند میں وہ مصنوعی سوار ایسے دکھائی دے رہے تھے گویا کوئی نئی فوج گھاٹیوں سے امڑتی چلی آ رہی ہو۔ اگلی صبح دونوں فوجیں پھر سفارہ ہوئیں۔ ڈھالیں چمک رہی تھیں، نیزوں کی انیاں سورج کی روشنی میں دہک رہی تھیں۔ سلطان جلال الدین اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے کہ چند اعلیٰ افسران گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے۔ حضور، تاتاریوں کو عظیم کمک پہنچ رہی ہے، افق پر ہزاروں سوار نمودار ہو رہے ہیں۔ سلطان نے نگاہ اٹھائی۔ دور میدان کے آخری کنارے پر واقعی ایک ہلچل تھی، گھوڑے، سوار اور ایک نیا لشکر۔ لیکن وہ نگاہ جو صرف ظاہر نہیں دیکھتی، باطن کو بھی پرکھ لیتی ہے، وہ مطمئن تھی۔ افسران نے مشورہ دیا، ہماری موجودہ تعداد اس سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بہتر ہے کہ پسپا ہو کر عقب کے بلند کوہستان میں مورچہ بندی کریں اور وہاں سے تیر اندازی اور سنگباری کے ذریعے دشمن کو روکے رکھیں۔ ظاہری اعتبار سے یہ مشورہ دانشمندانہ تھا، مگر سلطان کے دل پر سکینت کا ایسا سایہ تھا جیسے اسے نصرت الہی کی آہٹ سنائی دے رہی ہو۔ شاید وہ تاتاریوں کی چال بھانپ چکے تھے، شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر جو دور سے سمندر معلوم ہو رہا ہے، حقیقت میں صرف لکڑی اور کپڑے کا سراب ہے۔ انہوں نے نہایت سکون سے فرمایا، میرا قطعی حکم ہے، کل کی طرح گھوڑوں سے اتر جاؤ، پائے پیادہ صفیں قائم کرو اور ایک بارگی دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ یہ حکم سن کر بے چینی کی لہر سپاہ میں ضرور دوڑی، مگر سلطان کے عزم کے سامنے کسی کو سرتابی کی مجال نہ رہی۔ گھوڑے پیچھے چھوڑ دیے گئے، تلواریں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لی گئیں، صفیں قائم ہوئیں، اور پھر وہ فوج جسے تعداد نے نہیں یقین نے مضبوط کیا تھا، دشمن پر ایسے ٹوٹی جیسے آندھی خشک پتوں پر ٹوٹتی ہے۔ میدان اب صرف جنگ کا نہیں رہا تھا، یہ ایمان اور فریب کا امتحان بن چکا تھا۔ پھر وہ لمحہ آ پہنچا جب زمین نے آہ بھری اور آسمان نے اپنی سانس روک لی۔ گھمسان کا مارکا شروع ہو چکا تھا، تلواریں بجلی کی طرح قوند رہی تھیں، نیزوں کی انیاں سینوں کو چیرتی گزر رہی تھیں، انسانی جسموں کے پرخچے فضا میں بکھر رہے تھے۔ تاتاری دیوانہ وار بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمان پائے پیادہ، ثابت قدم، ایمان کو ڈھال بنائے پامردی سے ڈٹے ہوئے تھے۔ سیف الدین اغراق کے 40,000 جان باز دشمن کے لیے قیامت بن گئے تھے۔ ان کے واروں میں ایسی شدت تھی کہ تاتاری صفیں لرز اٹھتی تھیں، مگر پھر دشمن کے چیدہ سواروں کا ایک طوفانی دستہ اپنی صفوں کی مدد کو آن پہنچا۔ اسلامی لشکر کے بائیں بازو اور تاتاریوں کے دائیں بازو کے درمیان ایسا مارکا برپا ہوا کہ گرد و غبار نے سورج کو نگل لیا۔ حملہ شدید تھا، مگر ترک تیر اندازوں نے سامنے سے تیروں کا ایسا مینا برسایا کہ دشمن کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ منہ موڑ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی لمحے سلطان جلال الدین، جو قلب لشکر کی قیادت خود کر رہے تھے، بجلی کی طرح تاتاری قلب پر ٹوٹ پڑے۔ ان کا حملہ ایسا زوردار تھا کہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے، تاتاری صفیں ٹوٹ گئیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔
मगर सुल्तान उन लोगों में से ना थे जो दुश्मन को जिंदा बच निकलने का मौका दें। उनके इशारे पर कूच के नक्कारे गूंज उठे। हुक्म सादिर हुआ, सवार हो जाओ और दुश्मन का ताक़ुब करो। पलक झपकते में गाजियान इस्लाम ताज़ा दम घोड़ों पर सवार हो गए और बर्क रफ्तारी से फरार होते लश्कर के पीछे लपके। आगे जाकर तातारी एक और मैदान में जमा होने लगे। गोया ये सब किसी चाल का हिस्सा था, जैसे वो इस्लामी लश्कर को किसी मखसूस मकाम तक खींच लाना चाहते हों। मगर जब चंद शदीद हमलों के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि यहाँ रुकना मौत को दावत देना है, तब बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तानी अफवाज का दबाव सैलाब की तरह उन पर टूट रहा था। आखिरकार तातारी एक बार फिर पीठ फेर कर भाग खड़े हुए, मगर इस बार ताक़ुब बेरहम था। मुजाहिदीन की तलवारें फरार होते कदमों तक पहुंच रही थीं। दुश्मन के बेशतर हिस्से को मौत के घाट उतार दिया गया। तारीखी रिवायात में बयान हुआ है कि इस मार्के में चंगेज़ खान के बेटे तुली खान का नाम भी हलाक शुदगान में शुमार किया गया, अगरचे इस बारे में मौर्रिखीन के अक़वाल मुख्तलिफ हैं। उस दिन दरिंदा सिर्फ तातारियों ने अपने मजालिम का बदला चखा। बड़ी तादाद में वो कैदी बने, वही तातारी जिनके बारे में कहावत थी कि वो लड़ते लड़ते मर जाते हैं मगर कभी गिरफ्तार नहीं होते। मगर तारीख ने उस दिन ये कहावत तोड़ दी। हाँ, इंतकाम की आग भी भड़की। कई सिपाही और मजदूर अपने जख्मों का गुस्सा इन कैदियों पर उतारने लगे। ये वो लम्हा था जब जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिलों के अंदर भी लड़ी जा रही थी। और फिर इस्लामी लश्कर ने उन मुसलमान कैदियों को भी आज़ाद करा लिया जिन्हें तातारी अपने साथ लाए थे। वो जंजीरें टूटीं, वो आंखें जो मुद्दत से अश्कबार थीं, आज़ादी की रोशनी से जगमगा उठीं। ये सिर्फ एक जंग की फतह न थी, ये खौफ की दीवार के गिरने का ऐलान था। तारीख ने उस दिन देखा कि जब ईमान, अज़्म और क़यादत एक सफ़ में खड़े हो जाएं, तो वो लश्कर जो नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, उसे भी झुकाया जा सकता है। तारीख के औराख पर कुछ शहर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होते, वो अज़्म की फसीलें होते हैं। इसी ज़माने में जब मैदान परवान में सुल्तान जलालुद्दीन की तलवार तातारी गुरूर को चीर रही थी, उधर चंगेज़ खान कोहे बाबा के दामन में वाक़े बामियान की संगीन फसीलों से उलझा हुआ था। ये शहर चट्टानों के साए में खड़ा मगर फौलाद से ज़्यादा मजबूत इरादों का हामिल था। मुद्दत से मुहासरा जारी था, मुतवातिर हमले हो रहे थे, लेकिन अहले शहर की मुज़ाहमत टूटने का नाम न लेती थी। चंद दिन बाद परवान में शिकस्त खाने वाले सरदार और बचे खुचे सिपाही हाँपते कांपते चंगेज़ खान के खेमे में दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि उनकी फ़ौज पाश पाश हो चुकी और ये भी कि तोली खान हलाक हो गया। वो शख्स जिसने लाखों घरों के चिराग बुझाए थे, आज अपने ही खेमे में बेटे की जुदाई की खबर सुन रहा था। कहते हैं जिंदगी में शायद इससे ज़्यादा तल्ख लम्हा उस पर कभी ना आया था, और ये ज़ख्म जिसने उसके दिल को चाक किया वो उसके सबसे बड़े हरीफ सुल्तान जलालुद्दीन का लगाया हुआ था। गैज़ व गज़ब में डूबा चंगेज़ खान नए अज़्म के साथ बामियान पर टूट पड़ा। वो जानता था कि सुल्तान से आखिरी फैसला कुन मुकाबले से पहले इस मुसल्लह शहर की मुदाफ़ियत का खात्मा ज़रूरी है। मगर अहले बामियान भी कम न थे। उन्होंने आसपास की बड़ी चट्टानें पहले ही गायब कर दी थीं ताकि तातारी उन्हें मंजनीकों में इस्तेमाल न कर सकें। जवाब में लकड़ी के बुलंद मोर्चाबंद मीनार फसीलों के मुकाबिल खड़े किए गए। तातारी उन पर चढ़कर शहर के मुहाफिजों से टकराने लगे, मगर फसीलों से आतिशगीर मादा बरसाया गया और लकड़ी के वो मीनार शोलों में लिपट गए। तातारियों ने मवेशी ज़बह करके उनकी भीगी खालें मीनारों पर लपेट दी ताकि आग असर न कर सके। यूं चाल दर चाल, तरकीब दर तरकीब ये जंग जारी रही। फिर आखिरकार चंगेज़ खान ने हुक्म दिया, हमला जारी रहे जब तक किला फतह न हो जाए। पूरा लश्कर सैलाब की मानंद शहर पर टूट पड़ा। फसीलों से पत्थर और तीर पैमा बरसात की तरह बरस रहे थे, मगर हमला न रुका। इसी हंगामे में चंगेज़ खान का एक पोता जो उसका बेहद चहीता था, मुसलमान तीरंदाजों के वार से मारा गया। ये खबर गोया जलते ज़ख्म पर नमक थी। कहते हैं उसने अपने पोते की लाश खैमे में मंगवाई, खुद सर से उतार फेंका और पागलों की तरह अपनी सफ़ों में घूमता हुआ इस दस्ते तक जा पहुंचा जो फसील में शगाफ डालने की कोशिश कर रहा था। उसे अपने दरमियान पाकर तातारियों का जोश दो चंद हो गया। आखिरकार फसील के एक हिस्से में शिगाफ पड़ा और वो शहर में दाखिल हो गए।
फिर वो हुआ जिसे तारीख भी लिखते हुए कांपती है। गुस्से से पागल हुक्म सादिर हुआ, शहर में इंसान तो कुजा, कोई जानदार बाकी न बचे, हर इमारत मस्मार कर दी जाए। और फिर कत्ल का ऐसा बाजार गर्म हुआ कि इंसानियत सर छुपाने को जगह ढूंढती रही। मर्द, औरतें, बच्चे, कोई अमान न पाई, जानवर तक न छोड़े गए। लाशों की बेहुरमती हुई, घरों को राख कर दिया गया, दरख्त उखाड़ दिए गए, इमारतें मिट्टी में मिला दी गईं। जब तातारी लश्कर ने बामियान से कूच किया तो वहां सिर्फ कोयले और राख के ढेर बाकी थे, मगर राख के नीचे एक और सच भी दफन था। बामियान के मुजाहिदीन ने तवील मुद्दत तक लड़कर तातारियों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। यही वो मकाम था जहां उन्हें अपनी फौज की शिकस्त की खबर मिली, जहां तोली खान का नाम मिटा और जहां एक पोते की लाश उनके गुरूर पर बिजली बनकर गिरी। शायद इसीलिए उन्होंने इस शहर को खबरे गम कहना शुरू किया। मगर तारीख जानती है कि वो सिर्फ गम की खबर न थी, वो इस बात की शहादत भी थी कि जुल्म चाहे कितना ही बेरहम क्यों न हो, मुजाहिमत की एक चिंगारी उसके दिल में भी जख्म छोड़ जाती है। आज जिस ज़रज़मीन को हम अफ़गानिस्तान कहते हैं, उस दौर में वो इस नाम से मौसूम न थी। इसका बेशतर हिस्सा खुरासान कहलाता था, एक वसी खित्ता जो दरियाए सिंध तक फैला हुआ था, जहां पख्तून आबादी का इख्तिताम होता और उसके पार हिंदुस्तान की सरजमीन शुरू हो जाती थी। लफ्ज़ अफ़गानिस्तान को बाकायदा रियासती शनाख्त अहमद शाह अब्दाली के अहद में मिली, जब दुर्रानी सल्तनत ने इस खित्ते को एक नई सियासी सूरत दी। बादज़ां मौजूदा सरहदों की हदबंदी अमीर अब्दुर्रहमान खान के दौर में अंग्रेज़ों के साथ एक मुआहदे के नतीजे में हुई, जिसके तहत ड्यूरेंड लाइन कायम की गई और उसके पार का वसी इलाका अफ़गानिस्तान की सियासी हुदूद से जुदा हो गया। लिहाजा इस दास्तान में जहाँ कहीं मशरक़ी, जुनूबी या शुमाली खुरासान का जिक्र आए तो वो दरअसल आज के अफ़गानिस्तान के इलाके मुराद होंगे। ये सिर्फ नामों की तब्दीली नहीं, ये तारीख के बहाव की तब्दीली है। कल जो खुरासान था, आज अफ़गानिस्तान है, मगर इसकी मिट्टी में बहने वाला खून, इसकी पहाड़ियों में गूंजने वाली सदाएं और इसकी वादियों में लड़ी जाने वाली जंगें वही हैं। ये सरजमीन सिर्फ जुग्राफिया नहीं, ये जिहाद, मुजाहिमत और इस्तिक़लाल की अलामत रही है। अब सवाल ये है कि बामियान की राख अभी ठंडी भी न हुई थी, परवान की गूंज अभी फिजाओं में बाकी थी, तो चंगेज़ खान और सुल्तान जलालुद्दीन का अगला तसादुम कहाँ और कैसे हुआ? क्या खुरासान की ये सरजमीन एक और खून रेज बाब के लिए तैयार थी? अगले हिस्से में हम इस दास्तान के इस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां तारीख सिर्फ लिखी नहीं जाएगी, बल्कि दरिया के किनारे अपना फैसला सुनाएगी।